عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں، پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا۔ یہ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ جو اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک۔ تو آپ سبھی کے سامنے میں ابھی تھوڑی سی کلپ دکھایا ہوں جو آپ سبھی کو سمجھ میں آیا گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پر آج ویڈیو لایا ہوں اور کس لیے ویڈیو لایا ہوں، تو آپ لوگ سمجھ ہی ہوں گے تھوڑی سی کلپ دیکھ کر۔ تو آپ سبھی غصہ نہ ہو کہ تھوڑی سی کلپ دکھایا اس کے بعد میں بول رہا ہوں، اس کے بعد میں دکھانے والا ہوں، تو وہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور اس میں بیان کیے ہم سبھی کے لیے ہم سبھی کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کس طرح کا گزرتا تھا، اور ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر ہم سبھی کو کس طرح چلنا ہے، ایمان کی حالت میں ہم سبھی کو زندگی گزارنا ہے اور ایمان کی حالت میں ہم سبھی کو مرنا ہے۔ تو امید ہے آپ سبھی لوگ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو میں دیری نہیں کر رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملے گی، اور اسے جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو نیکیاں ملے گی۔ یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اب سال کون سا چل رہا ہے؟ 1445۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی۔ لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جیسے میں نے ایک حدیث بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں، پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا۔ یہ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی، سختی تھی، وہ فطری تھی، بچپن سے تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو، خلیفہ ہو، تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے۔ دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں،
सहाबा ने फिर महसूस किया कि अब हमें ऐसा अमीर भी चाहिए जो इतना सख्त हो, इतना सख्त हो। और सख्ती किस बात में? सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा में, बाकी अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं। तो सहाबा ने बिल इत्तेफाक आपका अमीर मुकर्रर कर लिया था। हालत तो ये थी कि हज़रत उमर फारूक कंधे पर कोड़ा लेकर के बाजार में घूमते थे। जब मदीने के बाजारों में जाते थे, कोड़ा उनका कंधे पर ही रहता था। जहां जिसको कुछ गुनाह करते हुए पाते वहीं कोड़े लगाते थे। शरीयत मुस्तफ़ा में कोड़े की भी जरूरत पड़ती है। बाज लोग ये कहते हैं हर चीज पीसफुली होनी चाहिए, अमन के साथ होनी चाहिए। अगर सारे इंसानों के तबीयत में अमन ही होता तो पुलिस की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। दुनिया की हर कंट्री, दुनिया का हर निजाम पुलिस का शोबा रखता है, एक डिपार्टमेंट रखा जाता है। क्यों? क्राइम पर कंट्रोल के लिए। और उनको सख्ती करने का हुक्म भी दिया जाता है, क्योंकि इंसानों की तबीयत में है, फितरत में है कि इनको कुछ सख्तियां ऐसी हैं जो सीधे रास्ते पर रख सकती हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, मैं अब आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी आपको सुनना जरूरी है कि आपके अंदर की ये जो सख्ती थी, सलाबत थी, और आप जो फैसले लेते थे, इसका असर बड़े बड़े सहाबा पर भी हुआ है। बड़े बड़े सहाबा पर भी इसका असर हुआ है। वो किसी की रूह रियायत नहीं करते थे। यहां तक कि अपने दौरे खिलाफत में आपने पाबंदी लगा दी थी कि जितने इलाकों में गवर्नर बने हुए सहाबा हैं, उनकी भी देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखते कि अगर वो कीमती घोड़ा इख्तियार कर लेते, तुर्की घोड़ा उस वक्त बहुत कीमती समझा जाता था, हज़रत उमर उनको दूसरे दिन उनको माजूल करने का लेटर जारी कर देते थे, उतर जाओ तुम। या अगर उनको बहुत कीमती लिबास पहनते हुए देखते, मना करते। ये सख्ती हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शरीयत मुस्तफ़ा के निफाज के लिए थी। बहुत बड़े दिरहम और दिनार तो छोड़े, एक तिनका भी आप गलत अंदाज से किसी के को न खाने देते थे, न इसराफ करने देते थे। इसके खिलाफ थे आप, इसके खिलाफ रहते थे हमेशा कि मुसलमानों के माल का एक आधा दिरहम भी जाया ना होने पाए। बादशाहों का मिजाज नहीं था कि जो मन में आए लुटा दिया किसी भी बात पर, नहीं। इस बात के हिसाब किताब में बहुत सख्त थे। यहां तक कि आपको मैं बताऊं, अपने बैतुल माल का जो दारोगा था उसको आपने इतना सख्त बना रखा था हिसाब किताब के लिए कि हज़रत उमर फारूक खुद भी अगर बैतुल माल से कभी कर्जा लेते तो बैतुल माल का दारोगा आपसे लड़ने के लिए आ जाता था। इतने दिन हुए अभी तक आपने दिया नहीं, खलीफा हैं आप। हज़रत उमर कहते मेरे पास है नहीं, आ जाने के बाद दे दूंगा। वो तकाजा करते करते घर को लिपट जाता था, रिवायत में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे को लिपट जाता था, कहता था ज्यादा दिन हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, जल्दी अदा कीजिए। लेकिन हज़रत उमर ने कभी उसके लिए कोड़ा नहीं इस्तेमाल किया। कोई अगर देखता तो ये कहता अरे ये दारोगा बैतुल माल का खलीफा वक्त की तरफ से मुकर्रर किया हुआ दारोगा है, लेकिन ये तकाजा करने आ जाता है माल का, वो भी अमीरुल मोमिनीन से। यहां तो पीएम से कोई हिसाब ही नहीं ले सकता, जितना चाहे देश बेच जाए, कोई पूछ भी नहीं सकता। अगर पूछेगा तो उसकी तो सदस्यता खत्म हो जाएगी, हाँ उसकी रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। पूछने की हिम्मत यहां नहीं है, कर भी नहीं सकते, चाहे तुम पूरी झोली भर करके यहां से पार्सल करो। ये दौर अलग है मेरे अजीजों, कहां खिलाफत को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां माल लूटने वाले चोर डाकू बैठे और लूट करके खूब ले जाएं, स्विस बैंक में दाखिल करें, लेकिन उनको से कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता। अगर पूछ लिया तो उसकी खैर नहीं, दूसरे दिन उसके यहां हुकूमत की दामाद एजेंसियां आ जाती हैं तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए। ये तो सिस्टम है। अपने आप को कभी इन्होंने हिसाब के आगे नहीं रखा कि हमसे कोई मुआखजा नहीं कर सकता, कोई इनको पूछ नहीं सकता तुम 12 लाख का सूट क्यों पहनते हो, नहीं पूछ सकता। लेकिन वो दौरे फारूकी था, जुब्बा भी अगर लंबा होता तो साहबा पूछ लेते थे। भरे मजमे में हजरत सलमान फारसी ने आपसे पूछा था कि माले गनीमत में कपड़ा आपने तकसीम किया था सब साहबा को, किसी का पूरा जुब्बा नहीं बन रहा था, हजरत उमर का पूरा जुब्बा बन गया। साहबी ने बीच मजमे में खड़े होकर पूछा आपका कैसे बन गया, सबका तो नहीं बना, वैसे भी आप कद में लंबे थे। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि क्या तुमको सवाल करने का हक है, बल्कि जवाब दिया, कहा माले गनीमत में मेरे बेटे को भी कपड़ा मिला था, उन्होंने मुझे हिबा कर दिया, दोनों कपड़े मिला करके मैंने सिलाया, मेरा जुब्बा बन गया है। जवाब देने का हक था, और जब वो अपने आप को इसका मुआखजा करने का मुस्तहिक समझते थे, वो दारोगा को जब इतना सख्त बनाकर रखे थे हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला कि वो आपसे तकाजा करता था कर्जे के, और बाकी दूसरी चीजों पर सख्ती इस कदर थी कि किसी की रूह रियायत नहीं थी। अदल व मसावात में, हिसाब किताब में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मामलात में बड़े सख्त थे फैसला लेने में। सही रिवायत में अगर आपको बताऊं, जब आपकी वफात हुई थी, आपके जिस्म पाक पर चादर पड़ी हुई थी,
दीदार के लिए बहुत लोग आए। जब साहबा, उनमें से मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम आए थे। सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह वजहुल करीम चादर हटाते हैं और लोगों से कहते हैं, लोगों गवाह हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में मैं इससे ज्यादा नेकियां करने वाला देखा नहीं था, इससे बेहतर आदमी नहीं देखा। और इब्ने असाकिर की रिवायत तो यह है, तारीख इब्ने असाकिर मशहूर मोतबर किताब है। मैं रिवायत आपको बता दूं, हजरत अली का यह फरमान है कि फरमाते अगर किसी को वो देखते कि हजरत अली फरमाते मुझको अबू बकर और उमर से अफजल बताए तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कोड़े लगवा देते हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आपने ऐलान फरमाया था। वो इस हद दर्जे ताजीम करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की भी और हजरत उमर की भी। ये बताना जरूरी इसलिए है कि बाज लोगों को ये लगता कि ये गसब की हुई खिलाफतें थी, गसब की हुई खिलाफतें थी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसी तारीफ नहीं करते उन खुलफा की। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, अब दौरे फारूकी की बातें करते हैं। फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ीलतें बेशुमार हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, ये सबसे बड़ी फ़ज़ीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर घड़ी उनको साथ रखा, ये बड़ी फ़ज़ीलत है। और आज तक, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सुनो। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के लिए वज़ीर होते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने आसमानों में 2 वजीर दिए और जमीन पर भी 2 वजीर दिए। आसमानों में मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन में मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। और देखो तो आज भी उस हरे गुंबद के नीचे बादशाह आराम फरमाया और दोनों वजीर पहलू में सोए हुए हैं। इस बात की अलामत है, हमने पढ़ा था कि बादशाह जब कुर्सी पर बराजमान होता है और वजीर उसके आसपास हैं तो यह अलामत होती है कि बादशाह का निजाम अभी चल रहा है। और अगर वजीर चले गए तो यह अलामत होती कि अब बादशाह की मजलिस खत्म हो गई है, रियाया के अब मामलात सुने नहीं जाएंगे। जब तक वजीर अगल बगल होते हैं यह अलामत होती है कि रियाया के मामलात सुने जाएंगे, अभी निजाम चल रहा है। कुर्बान जाओ उस हसीन गुंबद खजरा की छांव के नीचे। बादशाह आजम भी आराम फरमाए और पहलू में दोनों वजीर भी हैं। यह इस बात की अलामत है कि निजाम भी चल रहा है और रियाया की सुनी भी जा रही है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। और इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाया हूँ कि किस तरह इस्लाम का रोल और इस्लाम में ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह हर चीज़ का माहौल आज हो चुका है, इस्लाम का जो दीन है किस तरह होना चाहिए और किस तरह हो चुका है, और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या नहीं है, और गैर में क्या है नहीं है। तो इस सब का बयान इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश किया हूं जो आप सभी ने इस वीडियो में देखा। और इस तरह का वीडियो अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो में जो कमेंट आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए जो ज़्यादा बुराई में मुब्तला है। पहले का ज़माना ऐसा था कि लोगों के पास इल्म नहीं था और मदरसा या कोई मस्जिद या बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है जिससे वो इल्म सीख सकता है। लेकिन फिर भी नहीं सीखता है, ये उसकी जहालत है, ये उसकी शैतान की हरकत है, ये सब है जो वो नहीं सीख पाता है। तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे मुसलमान आजकल जो है वो बर्बाद भी और बहुत आबाद भी हो गए हैं। तो आप सभी लोग बर्बाद ना होए, आबाद होए इस चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में जो पैदा हुआ है वो हम सभी के फ़ायदा के लिए, और जो नुकसान के लिए है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ में हम सभी का फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे नुकसान अपने आप को देते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर करिए और साथ में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।